નમસ્કાર 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 વલ્લભભાઈ સાવલિયા આપણા માધવ સ્મૃતિ ન્યાસના મુખ્ય ટ્રસ્ટી છે. તેમને નમ્ર વિનંતી કે મહેમાનોને લઈને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે. વ્યાખ્યાનમાળાનો કાર્યક્રમ આગળ વધે એ પહેલાં સૌને સ્મરણ કરાવી દઉં કે પોતાનો મોબાઈલ બંધ છે કે નહીં તે ચકાસી લે, જેથી વ્યાખ્યાનમાળા દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનો ખલેલ ન રહે. આપણે જ્યારે આ સ્થાનમાં અંદર આવ્યા તો પ્રવેશ દ્વાર ઉપર આપણને એક પત્રક આપવામાં આવ્યું છે. આ પ્રતિભાવ પત્રક છે, સાથે સાથે આપણો પરિચય પણ એમાં છે. તો આપણો પરિચય પણ એમાં લખીએ અને 3 દિવસ વ્યાખ્યાનમાળાનો, એટલે આજેનું વ્યાખ્યાન સંપન્ન થાય ત્યાં સુધીનો આપણો જે અનુભવ રહ્યો એ આપણે એમાં પાછળની બાજુમાં લખીને આપીશું. બહાર નીકળતી વખતે માધવ સ્મૃતિ ન્યાસના કાર્યકર્તા ઊભા હશે, એમને આપણે આ પત્રક પાછો આપીશું. પહેલાં 2 દિવસના વ્યાખ્યાનની ડીવીડી બહાર વેચાણ અર્થે ઉપલબ્ધ છે. એક ડીવીડીની કિંમત 40 રૂપિયા છે. 2 ડીવીડી અને આજની ડીવીડી થઈ અને કુલ 3 વ્યાખ્યાનમાળાનો સેટ આપણને મંગળવાર પછી આપણું સેવા ભારતીનું જે કાર્યાલય છે 7 જોલી પાર્ક સોસાયટી કાંકરિયા, ત્યાંથી સવારે 9 થી 5 વાગ્યાના સમયમાં 3 ડીવીડીનો સેટ મળશે. સેવા ભવનનો દૂરભાષ નંબર જેમને લેવા માટે આવવું હોય તો સંપર્ક કરીને આવે. 25 32 84 00. આ તેનો દૂરભાષ નંબર છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. આજે કાર્યક્રમ બાદ આઈસ્ક્રીમની પણ વ્યવસ્થા રાખી છે, તો એ પણ આઈસ્ક્રીમ પણ આપણે સૌ વ્યાખ્યાન સંપન્ન થાય ત્યારબાદ લઈશું. અત્યારની આજની કાર્યક્રમ રૂપરેખામાં શરૂઆતમાં વ્યક્તિગત ગીત થશે, ત્યારબાદ ઉદ્બોધન થશે, છેલ્લે આભાર વિધિ થશે અને શાંતિ મંત્ર સાથે આપણું આ 3જું વ્યાખ્યાન અને આપણા માધવ સ્મૃતિ ન્યાસ દ્વારા આયોજિત આ 4થી વ્યાખ્યાનમાળાનું સમાપન થશે. 3 દિવસથી ચાલતી આ વ્યાખ્યાનમાળામાં આપણા માટે આજે ગૌરવની વાત છે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના માનનીય પ્રાંત પ્રચારકજી માન્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ ઓતિયા, આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ પણ આ વ્યાખ્યાનમાળામાં ઉપસ્થિત છે. તેઓનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વ્યાખ્યાનમાળા જે રીતે માધવ સ્મૃતિ ન્યાસ દ્વારા એક આયોજન થયું છે એ જ પ્રકારે સામાજિક સમરસતા મંચ દ્વારા એક વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન 20, 21, 22 એપ્રિલ શુક્રવાર, શનિવાર, રવિવાર આ પ્રકારે સળંગ 3 દિવસ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. સ્થાન આ જ જગ્યા એટલે કે ટાઉન હોલ જ છે. આ વ્યાખ્યાનમાળાના વક્તા માન્ય શ્રી ભીખુજી ઈદાતે, જેઓ સામાજિક સમરસતા મંચ મહારાષ્ટ્ર પ્રાંતના અધ્યક્ષ છે, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પશ્ચિમ ક્ષેત્ર બૌદ્ધિક પ્રમુખ છે, તેઓ મુખ્ય વક્તા રહેવાના છે. આ વ્યાખ્યાનમાળાના પહેલા દિવસે ડૉક્ટર આંબેડકર અને સામાજિક ક્રાંતિની યાત્રા આવું ગુજરાતીમાં માનનીય દત્તોપંતજી દ્વારા લિખિત અને ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદિત થયેલું પુસ્તક
તેનું વિમોચન થવાનું છે. વિમોચન કરતા તરીકે પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજી રહેવાના છે. વ્યાખ્યાનમાળાના ઉદ્ઘાટક તરીકે પરમ પૂજનીય શંભુનાથજી મહારાજ ઝાંઝરકા તેઓ રહેવાના છે. તો આ વ્યાખ્યાનમાળામાં પણ આપ સૌ આવો તેવી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે. અત્યારે વ્યક્તિગત ગીત હશે, ત્યારબાદ માન્ય શ્રી બજરંગલાલજી ગુપ્તનું ઉદ્બોધન થશે. વ્યક્તિગત ગીત શ્રી કમલેશભાઈ હલબા. राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से? जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को। ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हम न हटने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र है तो। हम न रुकने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा तो। चरण अंगद ने रखा है आ इसे कोई हटाए, दहकता ज्वालामुखी यह आ इसे कोई बुझाए। मृत्यु की पीकर सुधा हम बढ़ चलेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा।
राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। હવે માનનીય શ્રી બજરંગલાલજી ગુપ્તનું ઉદ્બોધન થશે. માન્ય શ્રી બજરંગલાલજી ગુપ્ત. सम्मानित मंच और आदरणीय बहनों और भाइयों, पिछले 2 दिनों से मैं आपके साथ एक ही विषय की चर्चा कर रहा हूं। पहले दिन मैंने आपके सामने ये निवेदन करने का प्रयत्न किया, आज अपने देश में भी और दुनिया में एक पश्चिम का विकास मॉडल चल रहा है, उसकी क्या विसंगतियां हैं, वो कैसे न व्यवहार क्षम है और न ही धारण क्षम है। उसने समस्याओं का समाधान कम किया है, समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न की है। ये पहले दिन के व्याख्यान में मैंने बताने का प्रयत्न किया था। तो स्वाभाविक रीति से प्रश्न उपस्थित होता है, विकल्प क्या है, और विकल्प की तलाश में भारत और भारत के जीवन मूल्य कोई सहायक हो सकते हैं क्या, ये मेरे कल के व्याख्यान का विषय रहा। उसमें मैंने बताने का प्रयत्न किया किस विकल्प की तलाश में भारत की मनीषा ने, भारत की प्रतिभा ने, भारत के विचारवंत लोगों ने हस्तक्षेप करना चाहिए, और हस्तक्षेप की दिशाएं क्या रह सकती है, उस चर्चा के लिए मैंने कल आपके सामने निवेदन करने का प्रयत्न किया। एक वैकल्पिक विचार दर्शन और वैकल्पिक कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, उसको मैंने नाम दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम, मंगल विकास दिया था। और मैंने बताने का प्रयत्न किया था कि जो मंगल विकास की अवधारणा है, ये सुमंगलम की संकल्पना है, ये पश्चिमी विकास संकल्पना की तुलना में एक बहुआयामी है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। और उसमें मैंने बताया था कि जब मैं ये बोलता हूँ कि ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी विश्व दृष्टि पर आधारित है, वो जो समग्र है, समन्वित है, एकात्म है। दूसरा मैंने बताने का प्रयत्न किया था कि जब मैं बोलता हूँ कि ये बहुआयामी है, तो इसका मतलब हम मनुष्य को भी बहुआयामी इस रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। मनुष्य को सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप में एक एकात्म मानव की अवधारणा और मान्यता लेकर के हम चलते हैं, और इस मान्यता को लेकर के जब चलते हैं तो अर्थशास्त्र के सारे अजम्पशंस बदल जाते हैं। अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर के कोई भी आर्थिक नीति के निर्माण करने में आजकल के समय में हम एक इकोनॉमिक रैशनैलिटी की मान्यता मानते हैं। तो कल मैंने बताने का प्रयत्न किया था ये अधूरी मान्यता है, और इस विकल्प में हम एक इंटीग्रेटेड रैशनैलिटी की चर्चा करते हैं, एक समग्र विवेकशीलता की चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। उसी क्रम में मैंने बताया था कि जीवनोद्देश्य ये भी व्यापक हो जाएगा हमारा। वर्तमान का विकास मॉडल केवल कंज्यूमरिज्म पर आधारित है, ज़्यादा उपभोग करो इस पर आधारित है, उपभोग की लालसाओं को बढ़ाने पर आधारित है, और बढ़ी हुई उपभोग की लालसा के लिए उत्पादन करने पर आधारित है। तो जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसकी नई परिभाषा वर्तमान परिस्थिति में कैसे किया जा सकता है, वो मैंने बताने का प्रयत्न किया था। और एक और नया डायमेंशन कल मैंने देने का प्रयत्न किया था कि वर्तमान के ग्रोथ मॉडल में केवल और केवल एक ही फैक्टर को वेरिएबल माना गया है, और वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। आज दुनिया के तमाम लोग कहते हैं कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है और ज़्यादा उत्पादन करना है तो केवल एक ही रास्ता है, ज़्यादा पूंजी का विनिवेश करो। भारत इस विचार को लेकर के खड़ा है। उसमें मैंने कहने का प्रयत्न किया था कल, सोशियो कल्चरल ह्यूमन फैक्टर्स ये भी वेरिएबल हो सकता है। तो हमको एक नए तरह का मॉडल, नई तरह की संकल्पना लेना पड़ेगा, जिसमें ये मानकर चला जाएगा गिवन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट by mobilizing socio-cultural and human factors can we increase our rate of growth। मेरा जवाब हाँ का जवाब है, और इसलिए नए प्रकार की संकल्पना पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा था। और फिर मैंने बताने का प्रयत्न किया था
हम लोगों ने अपने विचार में केवल भव्यता पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, केवल प्रदर्शन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, केवल संग्रह करने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, केवल दिखावे पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो हमारे संपूर्ण साहित्य में दो तरह के कॉन्सेप्ट मिलते हैं, एक भव्यता का, एक दिव्यता का। इसलिए हमारा जोर दिव्यता पर है, जिसको अगर आज की सरल भाषा में कहना हो तो हम केवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के पक्षपाती नहीं है, हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाने के पक्षपाती है। ये मैंने रखने का प्रयत्न किया था। और फिर कल मैंने बताया था, जिस मंगल विकास की और सुमंगलम की मैं चर्चा कर रहा हूं वो क्या होगा, तो उसके सोशो इकोनॉमिक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो मैंने बताया था 4 तरह की गारंटी देने वाला जो विकास का मॉडल होगा उसको मैं मंगल विकास कहूंगा। पहले मैंने कहा था सबको रोटी, अर्थात सब लोगों की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी जो भी रास्ता दे सकता हो वो मंगल विकास का रास्ता है। दूसरा मैंने कहा था सबको स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल की बात कही थी। तीसरा मैंने कहा था सबको संस्कार क्षम शिक्षा का समान अवसर, ऐसा मैंने कहा था। और चौथा मैंने कहा था कि कोर है मेरे इसका, वो है सबको रोजगार। तो इसलिए तमाम तरह का ओरिएंटेशन, इन्वेस्टमेंट का, प्लानिंग का, प्रोडक्शन तंत्र का, ये सारा बदलना पड़ेगा और उस प्रकार से सबको रोजगार देने की गारंटी कर सके, ऐसा है। अब एक सवाल मैंने कल आपके दिमाग में छोड़ दिया था यहाँ कह करके कि आखिर ये सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो एक सोशियो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग बनेगा, संरचना बनेगी, उस संरचना की दिशा क्या रहेगी। पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स में बदल करना पड़ेगा नीतिगत रूप से, वो नीतिगत परिवर्तनों की दिशा क्या रहे, वो मैं आज के व्याख्यान में चर्चा करना चाहता हूं। पहला सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है आज के जमाने में वो टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के आजकल हमको डराया भी बहुत जा रहा है कि बाकी मामलों में तुम ठीक ठाक हो परंतु इस टेक्नोलॉजी के मामले में तो पिछड़े हुए हो, इसलिए हमारी नकल करो, ऐसा हमको दादा देश बराबर दबाव डालते हैं। और हम भी मानसिकता में से इसमें आ गए हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास कोई काम की ही नहीं है। मेरे संपूर्ण व्याख्यान में मैं बार बार एक बात पर जोर दे रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर जोर दे रहा हूं, एक ऑल्टरनेटिव रूप से सोचने पर जोर दे रहा हूं। ये जो शब्द प्रयोग होते हैं, स्ट्रेटेजिशियन लोग वो शब्द प्रयोग बड़ा बारीक करते हैं। तो आजकल एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शब्द प्रयोग क्या चला है, हाई टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी। और हमारे बारे में क्या चस्पा कर दिया है, भारत के लोगों की टेक्नोलॉजी लो है, इसलिए लो टेक्नोलॉजी से उनको हाई टेक्नोलॉजी जोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरा बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन है, इस शब्दावली को बदलने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी में न कोई हाई टेक्नोलॉजी होती है, न टेक्नोलॉजी में कोई लो टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी तो हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, किसी एक देश विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में, एक काम विशेष में एक टेक्नोलॉजी उपयुक्त हो सकती है और कहीं उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी बेकार हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी का ये विभाजन जानबूझ करके किया गया विभाजन है। इस विभाजन को नकारने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और उसकी दृष्टि से 2 काम करना पड़ेगा। भारत बड़ा पुरातन देश है, भारत में टेक्नोलॉजी का आज भी अपार भंडार है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में जितना रिच आज भी, तमाम तरह की कमियों के बावजूद भी भारत है, दुनिया में कोई देश इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में उतना रिच नहीं है। तो ये जो हमारी पूंजी है उसका अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैं कहना चाहता हूं। जो आज के 500 साल पहले, आज के 200 साल पहले, आज के 1000 साल पहले जो हमारे यहाँ पर इंडिजिनस परंपरागत टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी, उसको जैसा का तैसा आज लागू कर लेना, ऐसा कोई समझदार आदमी नहीं कहेगा। तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, इसमें हमारी परिस्थितियों के अनुसार समस्याओं के समाधान करने का मार्ग खुल जाएगा। कैसे खुलता है, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। ये हमारे में नहीं है, केवल दुनिया के जो भी समझदार देश होते हैं समय समय पर अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके अपने देश के लिए रास्ता तलाशते हैं। जिनकी रुचि हो उनके लिए पढ़ने लायक बड़ी मजेदार किताब है। किताब का नाम है फ्लेक्सिबल रिजिडिटीज। शीर्षक किताब का बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिडिटी भी है।
बहुत मजेदार किस्से हैं उसमें से। टेक्नोलॉजी के अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट जापान की इकोनॉमी में कैसे हुए उसका वर्णन है। तो एक वर्णन ऐसा है कि जब जापान ने अपने विकास का रास्ता तलाशना शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो जापान तो तबाह हो गया था 1945 में। जापान पर बहुत बड़ा कर्जा था। जापान में कोई नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, इसके हिसाब से भी जापान की इकोनॉमी रिच नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। रोज भूकंप आते हैं। और जापान में उस समय पर जो कुछ भी सामान बनता था महा घटिया दर्जे का बनता था। या कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनको याद होगा जो जापान के कपड़े के बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित थी, जापान का कपड़ा खरीदना नहीं चाहिए, खरीद लिया तो सिलाना नहीं चाहिए, सिला लिया तो पहनना नहीं चाहिए, पहन लिया तो धोना नहीं चाहिए, और धो दिया तो रोना नहीं चाहिए। ऐसा प्रसिद्ध था बड़ा, यानी महानिकम्मा जापान का कपड़ा होता था। उस समय पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में इंग्लैंड ने प्रगति की थी। बंकिंगम और लंकाशायर की कपड़ा मिले बनी तो हमारे खून पसीने से, पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उस जमाने में इंग्लैंड का वर्ल्ड मार्केट में दबदबा था। अब इस जापान को इस स्थान से उठ करके इंग्लैंड की टेक्सटाइल मशीनरी से टक्कर देनी थी। ये समझने वाला विषय, कैसे टक्कर दी। जापान ने इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी की नकल करके नहीं दी टक्कर। जापान ने इंग्लैंड से टेक्सटाइल मशीनरी मंगा करके टक्कर नहीं दी। तो जापान के लोगों ने, जापान की सरकार ने अपने यहां के बुनकरों को बुलाया और टेक्नोक्रेट्स को बुलाया। बुनकरों को पूछा कि भाई तुम्हारा कपड़ा खराब क्यों बनता है, क्वालिटी खराब और कॉस्ट ज्यादा, ये दो ही तो बातें होती है मार्केट में, क्या होता है। तो बुनकरों ने बताया कि साहब जनाब, जब हम कपड़ा बुनने लगते हैं इस करघे पर तो बीच में से कपड़ा टूट जाता है, धागा टूट जाता है, धागे को जोड़ेंगे क्वालिटी खराब हो जाती है और उसमें टाइम लगता है। तो उस जमाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा बड़ा एलिमेंट लेबर कॉस्ट का ही होता था, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बाजार में हमारा कपड़ा महंगा भी होता है और क्वालिटी के हिसाब से भी खराब होता है। तो उनका यही समस्या है ना, उनका यही समस्या है। टेक्नोक्रेट्स को कहा हियर इज ए चैलेंज फॉर यू, आपके लिए चुनौती है, इस करघे में तुम ऐसा क्या बदल कर सकते हो। मशीन नहीं मंगानी, इस करघे में, इस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में ही अपग्रेडेशन करना है, इंप्रूवमेंट करना है। और जापान का इतिहास बताता है कि जापान के टेक्नोक्रेट्स ने उस ट्रेडिशनल लूम में ही परिवर्तन किया और उस ट्रेडिशनल लूम के सहारे जापान ने टेक्सटाइल के मार्केट में इंग्लैंड की पिटाई की। तो कुल मिलाकर के भारत के बारे में विचार करेंगे तो अपार है भारत के बारे में। किसी जमाने में एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन विजिट करने के लिए आया था भारत को, इंग्लैंड का, और उसने भारत में सब जगह पर घूम करके देखा कि जो बगैर पढ़े लिखे सामान्य किसान हैं उनको खेती करने की, फसल चक्र की, मिट्टी के बारे की इतनी जबरदस्त समझ है। और रिपोर्ट आज भी अवेलेबल है। रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन ने अपने कमेंट में लिखा कि भारत के सामान्य किसान को खेती की पद्धतियों के संबंध में, फसल चक्र के बारे में जितनी गहरी जानकारी है दुनिया की अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को नहीं। पर हमने उस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को भुला दिया, उसका अपग्रेडेशन नहीं किया और मन में और मस्तिष्क में अपने बारे में एक हीन भाव निर्माण कर लिया। कैसा निर्माण कर लिया? तो अब्दुल जे कलाम ने जो किताब लिखी है ना 2020 वाली, उसमें एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया उन्होंने कहा भारत के लोगों ने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया है। भारत के पास में भी कोई